Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. The next important feature of Indian economy is that Indian economy is a progressive economy. Indian economy is termed as progressive economy because of these three factors: because of the fast growth rate that India has experienced, huge size of the economy, and India's role in global economic affair has been increasing. India is the second fastest growing major economy in the world after China. Indian economy has grown at more than 7% from 1991 till now, whereas the world average growth rate has been 3.5%. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है. वी आर द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और हमारी जो ग्रोथ रेट है 1991 से लेकर आज तक 7% रही है. 7% एनुअल एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट, वेयर जो वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ रेट है वो अराउंड 3.5% ही है. सेकेंड जो फैक्टर है, इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है वो बहुत बड़ा है. वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी calculated as per purchasing power parity PPP in USD, and we are the fifth largest economy in terms of market exchange rate. अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट देखें तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड अगर एक्सचेंज रेट देखें देन वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट एक्सचेंज रेट एंड परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट. डिफरेंस ये होता है कि जो मार्केट एक्सचेंज रेट है वो तो आज की डेट में अगर आप देखें तो $1 इज इक्वल टू अराउंड 75 रुपीज़. बट जो पीपीपी का कंसेप्ट है वो डिफरेंट है. परचेजिंग पावर पैरिटी ये देखती है कि जो सिमिलर गुड्स हैं अगर यूएसए के अंदर $1 में मिल रहे हैं तो इंडिया में कितने रुपीज़ में मिलेंगे. तो अगर पीपीपी बेस पे हम एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं तो $1 कम्स इक्वल टू ₹19. अगर आप सिमिलर गुड्स लें तो जो गुड्स यूएसए में $1 के मिल रहे हैं वही सिमिलर गुड्स इंडिया के अंदर 19 रुपये में मिल जाएंगे. दिस पीपीपी कंसेप्ट विल स्टडी इन ग्रेटर डिटेल in future coming lectures. However, at this point of time, you should remember this data that as per PPP, we are the third largest, and as per market exchange rate, we are the fifth largest economy in the world. The third factor is India's increasing role in the global economic affairs. India is a part of G20, which is the international body responsible for economic policy at global level. G20 बहुत ही important इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है. इट्स एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. इसके 20 मेंबर्स होते हैं, 19 कंट्रीज प्लस 1 इज द यूरोपियन यूनियन, एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20. देयरफॉर इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, एंड कंसिक्वेंटली इंडिया का एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है इन ग्लोबल इकोनॉमी. Further, with increase in India's share in the world GDP and world trade, India's vote share in the World Bank and IMF is also increasing. After 1991, India का जो share है in world GDP and world trade, it has increased. Let us see this data. In 1991, India's share in world GDP was 2.5%, and in 2019, it increased to 7.8%. Similarly, India's share in world trade increased from 0.7% in 1991 to 1.8% in 2019. जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके अंदर जो भी हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें कंट्रीज़ वोट करती हैं, और जो कंट्री का जो वोट शेयर होता है इट डिपेंड्स ऑन देयर साइज ऑफ द इकोनॉमी. साइज ऑफ इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द मेजर्स जिसके हिसाब से वोट शेयर डिसाइड होता है. तो इंडिया का जो वोट शेयर है वर्ल्ड बैंक और IMF के अंदर वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है. इसी से इंडिया का जो से है इन वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. We will also study World Bank and IMF, International Monetary Fund, in greater detail in the coming lectures. The next feature of Indian economy is that India is a mixed economy. Now, what is mixed economy? ये समझने के लिए पहले आपको different types of economic system study करने पड़ेंगे. There are 4 types of economic system: capitalist, socialist, mixed economy, and the fourth one is the communist economy. Now let us study these economic system one by one. In capitalist economy,
द प्राइवेट सेक्टर हैज़ अ प्रीडोमिनेंट रोल। ऑल्दो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, बट जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो रोल होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडर द पब्लिक सेक्टर। अनलाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का प्रीडोमिनेंट रोल होता है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनीज का प्रीडोमिनेंट रोल होता है। यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है, बट उसका रोल जो है माइनर होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैव लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको लेस फेयर भी बोलते हैं, एंड विद लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी अगर लिबरलाइज्ड है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इज लीस्ट एंड रिसोर्सेज आर अलोकेटेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, ये जो डिसीजंस हैं ये प्राइवेट सेक्टर लेता है एज पर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रिसोर्स एलोकेशन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल जो है, आप इन रिसोर्सेज का यूज करके ही प्रोडक्शन करते हो, तो आपको किस सेक्टर में रिसोर्स को अलोकेट करना है, आपको किस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, दैट विल बी डिसाइडेड एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। Whereas in socialistic economy, there is government regulation, government control on the economy, and the resources allocation is done through economic planning by the government. Socialistic economy के अंदर जो resource allocation होता है वो economic planning के थ्रू होता है। बेसिकली यहाँ पर प्लान बनाए जाते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान बना दिया और उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई रीजन है, कोई पर्टिकुलर रीजन है जो कि बैकवर्ड रह गया है, तो गवर्नमेंट विल एलोकेट रिसोर्सेज टू दैट रीजन। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी गुड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है या फिर किसी गुड्स का प्रोडक्शन इन फ्यूचर विल बी रिक्वायर्ड इन मच मोर क्वांटिटी, तो गवर्नमेंट विल एलोकेट resources in that particular sector. In the capitalist economy, the motive of the production is to generate profit, whereas in socialistic economy, the motive of the production is social welfare. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले करता है, एंड प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है प्रोडक्शन करने का वो होता है कि भाई पैसा कमाना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है चीज़ों को, तो गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है प्रोडक्शन का, इट इज़ ओनली सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई हो, पॉवर्टी, हंगर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम हो। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी. In capitalistic economy, the efficiency is really high and there will be social injustice. Whereas in socialistic economy, they have low efficiency but it promotes social justice. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स एलोकेशन बहुत एफिशिएंटली करता है जिससे कि इकोनॉमी की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बट देयर इज सोशल इनजस्टिस इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पुअर इज़ मोर एक्सप्लॉइटेड इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट लेबर लॉज के थ्रू या डिफरेंट लॉज के थ्रू कंट्रोल ना करे तो देयर विल बी ह्यूज सोशल इनजस्टिस। वेयर एज इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी द एफिशिएंसी इज़ लो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर की एफिशिएंसी जनरली लो ही होती है, बट इट प्रमोट सोशल जस्टिस। यहाँ पर सोशल जस्टिस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, यहाँ पर सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है। People come first and profit comes second. Now, what is mixed economy? India is a mixed economy. So, mixed economy has features of both capitalist and socialistic economy. Both private sector and public sector are significantly present. There is moderate and selective government intervention. Government selectively intervenes in the sectors in which private sector fails. Therefore, mixed economy is a mixture of capitalist and socialistic economy. यहाँ पर दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक कंपनीज भी प्रेजेंट होती है और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी, दोनों सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट होती हैं। इंडिया के एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ पे इंडिया में टाटाज हैं, अंबानीज हैं, बिरलाज हैं, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है। साथ साथ इंडिया का जो PSU सेक्टर है वो भी काफ़ी बड़ा है, सेल, भेल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। सो बोथ सेक्टर इज सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, बोथ हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। और जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो बहुत ही सेलेक्टिव होता है इकोनॉमी के अंदर और मॉडरेट होता है, और गवर्नमेंट तब इंटरवीन करती है जब प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर नॉर्थ ईस्ट के अंदर या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर में भी टेलीकॉम कंपनीज वहाँ पर
अपनी सर्विसेज देने से मना कर दें, क्योंकि उनके बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से वो सही डिसीजन नहीं होगी. बट गवर्नमेंट will intervene through BSNL. BSNL will go to these hilly areas and will set up the towers. Therefore, there is moderate and selective government intervention. The resource allocation is through modified market mechanism. Here, both economic planning and market mechanisms are used. Basically, यहाँ पर modified market mechanism होता है. For example, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास 5 ईयर प्लान्स होते थे. इंडिपेंडेंस से लेके जब तक प्लानिंग कमीशन था, वी वर रेगुलरली फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, जिसके थ्रू रिसोर्स एलोकेशन गवर्नमेंट करती थी. साथ ही साथ मार्केट मैकेनिज्म भी प्रेजेंट था. प्राइवेट सेक्टर कैन डू रिसोर्स एलोकेशन एज पर द डिमांड एंड सप्लाई. अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जांपल लें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर प्रेजेंस भी है. ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स एटसेट्रा, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. साथ ही साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है. गवर्नमेंट डिफरेंट तरह की सब्सिडीज देती है, यूरिया सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, जिससे कि फार्मर की इनकम बढ़ाई जा सके, फार्मर्स का सोशल वेलफेयर हो. सो द रिसोर्स एलोकेशन इज थ्रू मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म्स इन मिक्स्ड इकोनॉमी. मोटिव ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट एंड फॉर पब्लिक सेक्टर इट इज सोशल वेलफेयर. तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों का प्रॉफिट मोटिव ऑफ प्रोडक्शन जो है दोनों का अलग अलग है. प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट कमाना है, पब्लिक सेक्टर का सोशल वेलफेयर है. It aims for high efficiency and social justice, however unable to optimally achieve both. क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी फुली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है और साथ ही साथ फुली सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी नहीं है. तो एम तो ये हाई एफिशिएंसी और सोशल जस्टिस का करती है, बट इट इज नॉट एबल टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स फुली. तो हाई एफिशिएंसी जो है वो भी सब ऑप्टिमली अचीव होती है और जो सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव वो भी सब ऑप्टिमली मीट होता है. तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जितना सोशल इनजस्टिस नहीं है, बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जितना एफिशिएंसी भी प्रेजेंस नहीं है. इन इंडिया बिफोर 1991 रिफॉर्म्स देयर वाज मोर फोकस ऑन सोशल जस्टिस at the expense of economic growth. After the reforms of 1991, there is more economic growth at the expense of social justice. अगर हम इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट पैरामीटर स्टडी करें, then we can come to this conclusion कि 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी, it was more tilted towards socialism. Therefore, there was more focus on the social justice at the expense of economic growth. 1947 से 1991 तक इंडिया की जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, that was around 3.5%. After the reforms of 1991, there was Indian economy tilted more towards capitalism. That's why there was more economic growth at the expense of social justice. इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ 1991 से लेकर आज तक अगर हम मेजर करें तो ऑन एन एवरेज 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, विच इज़ वेरी हाई. However, जो social justice है, that objective was somewhere lacking in this period. The fourth system is the communist economy. It is extreme form of socialist economy. There is no private sector. कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक्सट्रीम फॉर्म है. कैसे? यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है. सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर होता है बट उसकी प्रेजेंस कम होती है, बट यहाँ पर तो प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सच एज प्राइवेट लैंड एटसेट्रा. एवरीथिंग बिलोंग्स टू द कम्युनिटी. सब कुछ कम्युनिटी का है. आप किसी इंडिविजुअल का कुछ नहीं है, सब कुछ कम्युनिटी को बिलोंग करता है. इट इज़ अ क्लासलेस सोसाइटी. कोई क्लास नहीं है, कोई अमीर क्लास नहीं है, कोई गरीब क्लास नहीं है, कोई मिडिल क्लास नहीं है, क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं. कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं है. सो इट इज़ अ क्लासलेस सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल. And it is an ideal society as per the Karl Marx. Karl Marx is a thinker. He was a thinker. So his idea of ideal society goes with the communist economy. In communist economy, people contribute as per their ability and they get as per their need. इसका मतलब ये है जो लोग हैं वो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी के अंदर. जो एडल्ट हैं वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे, जो बूढ़े लोग हैं वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड ईच ऑफ देम विल गेट एज पर देयर नीड. जो उनकी नीड होगी उनके हिसाब से उनको रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे. हाउएवर इन अ रियल वर्ल्ड कम्युनिस्ट इकोनॉमी आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है. दिस कंसेप्ट वाज ट्राइड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फॉर्मर सोवियत यूनियन USSR, लेकिन आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी कम्युनिस्ट इकोनॉमी नहीं है.
इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, जो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कंट्रीज फॉर्म हुई थी, उन कंट्रीज के अंदर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी देख सकते हैं। एंड द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज countries like USA, Canada, Australia, Western European countries. Although capitalist economy such as USA have become developed, but the process of development has been very unjust. The poor were exploited and there was class struggle. It is important to note here that कि आज की डेट के अंदर हम देखते हैं कि यूएसए जो है वो डेवलप्ड कंट्री है एंड इट इज़ एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाउएवर यूएसए का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस रहा है from being an undeveloped country to a developed nation as of today, that was very very unjust. वहाँ पे poor का exploitation हुआ and there was class struggle between rich and the poor. Therefore, for India, capitalist economy is not an ideal example. Eventually, India will become a developed nation, but हम वो development process को भी unjust नहीं बनाना चाहते. We want a development process which is just, which is fair to each and every section of the society. Therefore, in India, it can be argued that India can achieve all the advantages of capitalist system within the mixed economy framework also. हमारे लिए mixed economic framework is good क्योंकि यहाँ पर efficiency और social justice दोनों के ऊपर focus किया गया है. The developmental process is not unjust as is in the capitalist economy. Now the next important topic is economic policy in India. Economic policy in India can be studied in two eras: pre-reform era from 1947 to 1991 and the post-reform era from 1991 to till now. From 1947 to 1991, India was a mixed economy with tilt towards socialist economy. There were government regulations and government control in the economy, as we have discussed earlier. Overall, there was low efficiency in the economy due to lack of competition, and India achieved average annual growth rate of GDP around 3.5% in this period. जो average annual GDP growth rate है वो 3.5% ही था during this period, and the focus of the government was on social justice. After the reforms of 1991, the nature of the Indian economy became mixed economy with tilt towards capitalist economy. And this era can be further divided into two phases, from 1991 to 2004 and from 2004 to the present. In government adopted LPG policy in 1991, due to which economic efficiency increased and growth happened. However, social justice was slightly compromised. जो पोस्ट रिफॉर्म इरा है उसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, 1991 से 2004 तक और 2004 से प्रेजेंट टाइम तक। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडियन इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ी, जिसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी चेंज टू मिक्स्ड इकोनॉमी विद टिल्ट टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, और इसके कारण जो है सोशल जस्टिस का जो गोल था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया। इस 1991 से 2004 की पीरियड के अंदर वी हैव सीन कि जो पॉवर्टी रिडक्शन था वो स्लो रेट पे हुआ। जो 1990s का पीरियड था, इट विटनेस हाई अनएम्प्लॉयमेंट, और जो इनइक्वालिटीज थी वो भी इस पीरियड के अंदर हाई रेट से इंक्रीज हुई। द सेकेंड फेज इज 2004 टू द प्रेजेंट। 2004 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट केम इनटू द पावर and it realized that there is compromise on the goal of social justice. Therefore, government intervention in social sector such as health, education, food security, etc. increased. Therefore, जब 2004 के अंदर यूपी गवर्नमेंट केम टू द पावर, इट रियलाइज कि भाई जो सोशल जस्टिस का जो गोल है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इस कारण से द यूपी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सर्टेन न्यू एक्ट्स, न्यू स्कीम्स टू बूस्ट सोशल जस्टिस, सच एज एमजी नरेगा स्कीम लेकर एक्ट लेकर आई गवर्नमेंट, सो दैट एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जा सके पुअर पीपल को। फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई, साथ ही साथ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको स्ट्रेंथन किया गया। पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो लो रेट पर राइस, वीट एटसेट्रा ज़रूरतमंद लोगों को प्रोवाइड करवाती है। इस सिस्टम के अंदर काफ़ी लीकेजेस थी, आज भी लीकेजेस हैं, बट पहले बहुत ज़्यादा होती थी। तो उस लीकेजेस को कम करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए। And the present NDA government also, by and large, it has continued with these policies. The NDA government has also not scrapped MG Narega, and it is also continuing with the PDS.
बिकॉज एवरी गवर्नमेंट नोज कि जो सोशल जस्टिस का गोल है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर हमें जस्ट ग्रोथ चाहिए, हमें जस्ट डेवलपमेंट चाहिए, हमें फेयर डेवलपमेंट चाहिए। सो फ्रॉम 2004 टू द प्रेजेंट देयर वाज मोर फोकस ऑन द सोशल जस्टिस पार्ट। बट इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स से उनको फर्दर कल्टेल किया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एलपीजी रिफॉर्म्स को भी फर्दर एनलार्ज किया गया, उनको फर्दर बूस्ट दिया गया। द गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज ओनली इन द सेलेक्टेड सेक्टर्स रिलेटेड टू द सोशल जस्टिस, देयरफॉर इकोनॉमिक ग्रोथ फर्दर एक्सीलरेटेड। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को फर्दर बूस्ट दिया, फर्दर पॉलिसी रिफॉर्म्स किए। फॉर एग्जाम्पल, डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ पीएसयू इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू टुडे। There was introduction of goods and service tax. There is more focus on ease of doing business. Ease of doing business index के अंदर इंडिया की रैंकिंग भी इम्प्रूव हुई है ड्यू टू वेरियस एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, इट वाज ओनली एंड ओनली इन द सोशल जस्टिस सेक्टर्स। इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं किया। इकोनॉमिक सेक्टर वाज अलाउड टू बी फ्लरिश्ड बाय द forces of demand and supply. So this was all about nature of economic policies in India. In the next lecture, we'll study about the concept of inequality.